Hello and welcome, my dear friends of class 10th A, B, C of Rajeshwar School, Mahu. Today we begin with the second story or the second lesson, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. This is from the book, a supplementary reader, Footprints Without Feet. A story about a young boy, how he makes friends with Anil, and Anil trusts him completely and employs him. And towards the end, we will see and we'll come to know does whether the boy betray his trust or not. Okay, so I shall start with reading of the story. The Thief's Story, written by Ruskin Bond, and it is written in the first person. The narrator is narrating the story all by himself. He says, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. It means he was a master of any particular action, here meaning the theft. So, I, as a thief, is writing the story. It's an autobiographical style of story whose age is 15 years, and he is a very experienced and successful thief. Okay. Any doubts up till here? Says good at thefts. चोरी में बड़ा उस्ताद है ये, चोरी करने में माहिर चोर है, ऐसा माना जा सकता है ना जी. Anil was watching a wrestling match when I approached him. So, अनिल से इसकी मुलाकात कहाँ होती है? टीवी पर रेसलिंग मैच देखते हुए, कुश्ती का मुकाबला. And who's Anil? He's about 25 years old, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. यानी इसको तो चोरी के इरादे से गया था भाई ये, है ना. दुबला पतला सा लंबा सा व्यक्ति था ये. कौन? अनिल. ये इससे पहली मुलाकात अपने चोर की हुई थी. और द एज ऑफ अनिल was 25 years. He was an easygoing person. He was kind and simple enough for my purpose. This is what it has been said here. उसका पर्पस क्या था? चोरी करना. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. यानी उसका विश्वास जीतना है और उसके घर में अंततः चोरी करना है. So somehow to gain the confidence of the young man, and then the theft has to be taken place. देखिए 15 साल का थीफ है, and it is his. So at this tender age he starts his thefts. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery. अरे भाई दुबले पतले आदमी बोले तुम तो बड़े पहलवान जैसे लगते हो. So this is excessive and insincere praise, given especially to further one's own interests. So this may be helping him to make the friends with अनिल. अनिल से दोस्ती करने के लिए जुगाड़ बैठाता है उसको. तो अरे तुम तो खुद ही पहलवान जैसे हो, तुम तो किसी पहलवान से कम नहीं हो. जबकि ये कहा गया है ही इज़ वेरी लीन थिन, बहुत दुबला पतला है अनिल. लेकिन चूँकि कुश्ती में इंटरेस्ट रखता है, उसका मैच देख रहा होता है, तो ये जो चोर है 15 साल का बच्चा, ये उसको पटाने के लिए बोलता है अरे तुम तो बड़े पहलवान जैसे दिखते हो यार, क्या बात करें. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर्स योरसेल्फ, ऑल्दो ही इज अ वेरी थिन लीन पर्सन ना. दुबले पतला में, अरे वाह पहलवान, वाह बहुत बड़ी. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off to offend for a moment because at that time I was rather thin. तो वो अनिल चोर को बता रहे तुम भी बड़े पहलवान जैसे लगते हो, जबकि चोर भी काफ़ी
दुबला पतला सा इंसान था। समझा जी? तो बुरा मानता है ये चोर, बिकॉज ही वॉज इवन ही गेट्स हर्ट। बड़ा दुबला पतला सा आदमी है, उसको बोलते हैं भैया तू तो बड़ा पहलवान सरी का आदमी, तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? ऑब्वियसली ही फील्स हर्ट, बुरा लगता है उस टाइम पर। मुझे लगता है मेरे मजे ले रहा है क्या भाई, तो बुरा मानता है वो। वेल आई सेड मॉडेस्टली इन अ हम्बल मैनर। मॉडेस्टली मतलब बहुत तमीज़ से, एहतियात से। आई डू रसल अ बिट। हाँ, मैं भी कभी कभी कुश्तियाँ लड़ लेता हूँ मतलब। एंड व्हाट्स योर नेम? अनिल से परिचय, दोस्ती बढ़ाना चाहता है। जो यहाँ विश्वास होता है, हमें विश्वासघात होता है। हरी सिंह आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employers. तो वो हर साल, हर हर टाइम, हर महीने सॉरी, एक नया नाम रख लेता था अपना, जिससे पुलिस और उसके जो पुराने मालिक थे उसको पकड़ नहीं पाते थे। ओके, सो उसने हरी सिंह नाम का झूठा नाम बता दिया जब अनिल ने उससे पूछा। When Anil asked him, he told a false name, pseudo name as Anil Hari Singh. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो रेसलिंग के बारे में बातचीत हो रही है। अब इसको आधा नहीं है ज़्यादा रेसलिंग के बारे में, अनिल को बहुत ज़्यादा आइडिया है कि कैसे दावपेच है, कौन कौन से रेसलर्स हैं और क्या उनकी पोजीशंस हैं और क्या आगे होने वाला है। ठीक है, अब अनिल आगे आगे चल रहा है और ये चोर जो है हरी सिंह 15 साल का लड़का, ही इज़ फॉलोइंग अनिल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। So Anil walked away and I followed casually. Who followed casually? The thief, whose name is Hari Singh in the story. Right? वो तो मैच के वहाँ से चल देता है। Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. वो बच्चा क्या बोलता है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। अनिल बोलता है नहीं नहीं भैया, मेरे पास आपको पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ नौकर रख सकता हूँ। समझा जी? आई कांट पे यू, आई कांट गिव यू एनीथिंग। ओके, मैंने उसको सैलरी नहीं दे सकते। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई वॉज मिसजज हो गया था। उसको लगा कि अरे गलत तो नहीं हुए, गलत आदमी को तो नहीं पकड़ गया। आई हैड मिसजज्ड माई मैन। सो आई थॉट दैट ओवर, मतलब ही गॉट कन्फ्यूज्ड, ही गॉट हिमसेल्फ कन्फ्यूज्ड। ओके, maybe to form a wrong opinion about someone or something, and thought that over मतलब to consider an idea or plan carefully before making a decision. क्या to be or not to be, क्या बात है, ये तो खुद ही गरीब है, इसके क्या चोरी करेंगे, है ना? इसके पास तो दो पैसे ही नहीं है, बोल रहा है he has no money to pay. Then I asked, can you feed me? Can you cook? If I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. वो उससे पूछता है मुझे खाना खिलाओगे क्या? खाना ही दे देना, सैलरी मत देना, है ना? तो पूछता क्या खाना बनाना जानते हो? तो ये थीफ झूठ बोल देता कि यस आई कैन कुक। तो बोलता अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा। आप खाना बनाना आता, आपका ना आता, मुझे खिलाना।
बट सैलरी आई वोंट बी एबल टू गिव. सैलरी देना पॉसिबल नहीं है. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो वो मुझे जमुना स्वीट शॉप जो नाम की जगह है, मिठाई की दुकान के ऊपर उसका कमरा था, वहाँ ले गया और कहा कि मैं ये रूम में रहता हूँ और आप ये बालकनी में बाहर ठहर जाना. ठीक है, देख रहे हैं आप, पिक्चर में भी दिखाया है. But the meal I cooked that night must have been terrible. Because what because? Because Anil gave him to a stray dog and told me to be off. उसने बोले ऐसा खाना बनाता है, उसने कोई सड़क के कुत्ते को दे दिया खाना और बोले चलो निकलो यहाँ से, टू बी ऑफ, निकलो. ऐसा खाना बनाते हैं क्या? So I just hung around, wait at a place or to stay near a place or a person, smiling in my most appealing way. So उसको पटाने के लिए, अरे भैया रख लो, मेरे को रख लो, अपने रख लो. So he couldn't help me laughing. Later he patted me on the head and said, never mind, he'll teach me to cook. है ना, उसका सिर पे थपथपाते बोलता है, चिंता मत कर, मैं तुझे सिखा दूंगा खाना बनाना. So this shows that this writer is a very kind-hearted person whose name is Anil. है ना, वो खाना बनाना सिखा देगा. He will teach me to cook. देखिए, खाना बनाना भी सिखाता है, आगे पढ़ाई करना भी सिखाता है. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add two numbers. तो वो मुझे सेंटेंसेस भी बनाना सिखा देगा, लैंग्वेज भी सिखा देगा, एंड टू ऐड नंबर्स मतलब मैथ भी सिखा देगा. सो ही वॉज काइंडलेस पर्सन एंड ही वॉज वेरी हम्बल एंड ही वॉज काइंड हार्टेड, जनरस. तो तुम्हारा अपना नाम लिखना सिखा देंगे, जोड़ बाकी करना सिखा देंगे. आई वॉज ग्रेटफुल. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So एक endless process था. He says, मैं बड़ा grateful हूँ, thankful हूँ कि एक ऐसे educated person से मैं मिला जो मुझे भी educate करेगा. और फिर कोई लिमिट नहीं है भाई, education has no limits, the sky is the limit. Through education then you can have endless favors. मतलब कोई अंत नहीं है, इतने फ़ायदे हैं एजुकेशन. I was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, making a profit of about ₹1 a day. So वो बाज़ार का सामान वान खरीद के लाता था, ₹1 की कमाई उसकी हो जाती थी, कुछ तो कुछ हेरा फेरी कर देता था. क्योंकि राशन का सामान जो खरीदते थे ना घर के लिए, तो डेली के लिए सब्जी खरीदना और छोटे मोटे सामान खरीदना खाने पीने का, उसमें पुराने ज़माने की कहानी है भाई साहब. हाँ, ₹1 बड़ी अमाउंट है उसके लिए. अभी आप तो ₹1 के समझते ही नहीं है. टाइम की बात है साहब, है जी. सो अनिल के लिए काम करते करते वो ₹1 की चोरी कर लेता था, पॉकेट मनी जो अपनी निकाल लेता था. ठीक है, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. वो तो बड़ा हाथ मारना के दाव में था. ₹1 रोज से उसका पेट नहीं भरने वाला था. ठीक है, तो डेली जो सप्लाई थी, जो राशन का सामान लाते थे, उसमें से किसी तरह ₹1 का हेरी फेरी कर देता था, हेरा फेरी. आई थिंक न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. तो लगता है कि उसको पता था कि ये कुछ चोरी कर रहा है,
बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मतलब ही वॉज नॉट एनॉयड, वो गुस्सा कभी नहीं होते थे। चलता है यार, बच्चा है, कर लेने दो इसको थोड़ा सा, है ना। सो वो उस पर गुस्सा नहीं होते थे, उसको कभी टोकते नहीं थे, उससे ज़्यादा हिसाब किताब नहीं मांगते थे। ऑल्दो ये बच्चा उनके उसमें से चोरी करता रहता था पैसे की। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ रीडिंग ऑफ द लेसन. We will be continuing the reading in the next few parts. For that, until then, good night. Oh, sorry. Goodbye. Take care. God bless you. Stay safe.